Hello everyone. Today we are going to discuss about the questions asked in GPA 2011. Previously we have discussed about the questions that have been asked in GPA 2010 in detail. You can find them at my YouTube channel. Myself Dr. Mukesh Kumar Kumawat. So I will start the discussions about the question paper asked in GPAT 2011. So the first questions is quinoline alkaloids are biosynthesized via which one of the following pathways? So what is the questions that quinoline alkaloids can be biosynthesized from which pathway? हम लोग जानते हैं कि क्विनोलिन एल्कलॉइड्स जो कि सिनकोना बार्क से मिलता है और सिनकोना बार्क से जो क्विनोन एल्कलॉइड मिलते हैं ये सिनकोना ट्री और सिनकोना बार्क ऑफ द सिनकोना ऑफिसनेलिस इसमें बायोसिंथेसाइज होते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट बाई मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं और ये सिकिमिक एसिड पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं। और सिकिमिक एसिड पाथवे क्योंकि क्विनोलिन न्यूक्लियस इनकॉर्पोरेट होना है तो हम जानते हैं कि क्विनोलिन न्यूक्लियस कौन से टाइप के अमीनो एसिड से आ सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ सिकिमिक एसिड टायरोसिन, सिकिमिक एसिड बी ऑप्शन सिकिमिक एसिड ट्रिप्टोफान एंड सी ऑप्शन इज सिकिमिक एसिड कैथेनियन and D option is the cinnamic acid phenylalanine. So as we know that the quinoline nucleus can be prepared by a tryptophan amino acids only. So the tryptophan amino acids can be used for the preparations of quinoline nucleus and the cinnamic acid pathway will be used. So in the Syncona officinalis tree or Bark or Syncona, we can say that is quinoline alkaloid that we obtained quinine, quinidine, synconine and synconidine, 4 alkaloids as the quinoline alkaloids used as antimalarial and the quinidine is used as antiarrhythmic. That is the additional information that I want to discuss with you. जो मैं आपको बताना चाहूँगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट ऑप्शन हो गया? दैट इज ऑप्शन बी सिकिमिक एसिड जो कि ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड से बायोसिंथेसाइज होता है, इसमें सिनकोना बार्क में। नेक्स्ट, सो आई थिंक आपको ये क्लियर क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ए का राइट ऑप्शन है सिकिमिक एसिड पाथवे एंड ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड जो कि क्विनोलिन एल्कलॉइड बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज Khelin is an active constituent of which one of the following plants? So what is the meaning of this? That Khelin is an active constituent and from which plant it may be obtained. So the first option is Prunus ceruna. Option B is Tribulus teristis, Ammi, Visnaga, Villa, planifornia. So the correct option for this is Ammi, Visnaga, from which the Khelin active ingredient that is obtained from the Ammi Visnaga. So that is all about the question number 2. Now moving the question number 3. Which one of the following compound is useful for substitutions of the cell
डिवीजन और रिलीज ऑफ लेटरल बड डोरमेंसी। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कौन सा जो कंपाउंड है वो कि सेल डिवीजन का स्टिमुलेशन और सेल डिवीजन को एनहांस करता है, स्टिमुलेट करता है, और लेटरल बड डोरमेंसी को बढ़ावा देता है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 जीटीन, ऑप्शन नंबर बी 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी इज इंडोल एसिटिक एसिड एंड ऑप्शन डी इज पिक्लोराम। सो हम लोग जानते हैं कि सेल डिवीजन के लिए जो प्लांट्स में जैसे एक हार्मोन जो रेस्पॉन्सिबल है जो कि सेल डिवीजन को एनहांस करता है, न्यू बडिंग को एनहांस करता है, दैट इज जीटीन। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 4. The question number 4 is it is the powder drug that have been that has the following microscopic characteristics and anther cells, that are the anther cells: parenchyma, pollen grains, phloem fiber, volatile oil cells and stone cells. The powder is obtained from which one of the following? Option A is clove bud powder, option B is clove bud powder with stalk, option C is mother clove, and option D is none of the above. So think about which, जो कि आपका ये ऑप्शंस हैं उनमें किस में कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है जिसमें अगर पाउडर ड्रग ली जाए जिसमें एंथर सेल्स भी हों, एरेनकाइमा भी हों, पोलिन ग्रेन भी हों, फ्लोइम फाइबर भी हों और वोलेटाइल ऑयल सेल भी हों, स्टोन सेल्स भी हो। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन आप जैसे कि क्लोव बड पाउडर है, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एंथर सेल्स हैं, एरेनकाइमा है, पोलिन ग्रेन्स हैं। तो ये कहाँ कहाँ किस में ये चीज़ हो सकती है? क्योंकि इसमें एंथर सेल्स हैं, एरेनकाइमा है, पोलिन ग्रीन्स है, फ्लोइम फाइबर्स है, वोलेटाइल ऑयल्स है। ये वोलेटाइल ऑयल है, क्लोव बड होगी। स्टोन सेल्स आ गया, इसका मतलब स्टोन सेल्स है, मतलब इसमें स्टॉक भी होना चाहिए। तो आपका मदर जो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? दैट भी है ऑप्शन बी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्टॉक सेल्स है, स्टॉक सेल भी है, स्टॉक भी है और बड क्लोव भी है। और क्योंकि यहाँ पे स्टोन सेल हैं, एंथर सेल्स हैं, एरेनकाइमा है, पोलिन ग्रेन्स है, फ्लोइम फाइबर्स है एंड वोलेटाइल ऑयल्स है। सो द करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक, जिसमें क्या है, क्लोव बड है और स्टॉक सेल्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इर्गेट एल्कलॉइड्स इज वाटर सोल्यूबल एंड शोज द ब्लू फ्लोरेसेंस? कि कौन सा
इरगेट एल्कलॉइड है जो कि वाटर सोल्यूबल भी है और ब्लू फ्लोरेसेंस भी शो करता है। ऑप्शन ए इज इर्गोसिन, ऑप्शन बी इज इर्गोटामिन, ऑप्शन सी इज इर्गोक्रिस्टीन, ऑप्शन डी इज इर्गोमेट्रीन। सो यहाँ पर जो वाटर सोल्यूबल है वो और जो ब्लू फ्लोरेसेंस भी शो करता है, तो उसका ब्लू फ्लोरेसेंस शो करने वाला और वाटर सोल्यूबिलिटी शो करने वाला, क्योंकि हम जानते हैं इर्गोट एल्कलॉइड जो किससे क्लेविसेबस पुरपुरिया, और इससे जो है हमें इर्गट एल्कलॉइड मिलता है। और इर्गट क्लेविसेबस पुरपुरिया जो फंजाई है वहाँ से इर्गट मिलता है। और इर्गट जो है क्या है, इर्गट के 3 एल्कलॉइड्स हैं, 3 एल्कलॉइड्स के कह सकते हैं 3 पेयर ऑफ एल्कलॉइड्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ एल्कलॉइड्स, जो कि 2 आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, तो 6 एल्कलॉइड्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 3 पेयर ऑफ एल्कलॉइड्स, तो 3 पेयर ऑफ एल्कलॉइड्स। तो इसमें 3 पेयर्स में कौन सा, इर्गोमेट्रीन, इर्गोटामीन और इर्गोक्रिस्टीन, इनके आपस में जो है ये आइसोमर्स होंगे। तो इसमें जो वाटर सोल्यूबल है दैट इज इर्गोमेट्रीन। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इर्गोमेट्रीन वुड बी द वाटर सोल्यूबल, rest others are not the water soluble, less lipid soluble. So correct option would be the D. Option question number 6. Gold beater's skin test is used to detect the presence of which one of the following class of compounds. इसका क्या मतलब है, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट जो है किसके जो टेस्टिंग में यूज की जाती है, कौन सी क्लास के कंपाउंड में या कौन सी क्लास के ड्रग में यूज़ की जाती है गोल्ड बीटर टेस्ट, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, ये इसका मीनिंग है। ये गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, तो ये किस में यूज़ हो सकती है। ऑप्शन ए इज टेनिन, ऑप्शन बी इज स्टेरॉइड, ऑप्शन सी इज ग्लाइकोसाइड्स एंड ऑप्शन डी इज रेजिन। तो ये हम जानते हैं कि गोल्ड बीटर टेस्ट किस में यूज होती है, टेनिन में। गोल्ड बीटर टेस्ट, जो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट किसका है, टेनिन का। जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है आपका, दैट इज फिनाइल इथाइल आइसोक्विनोलिन इज द प्रिकर्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड्स। इसका मतलब क्या है कि फिनाइल इथाइल आइसोक्विनोलिन जो है वो कौन से एल्कलॉइड का प्रिकर्सर है, मीन्स कि कौन से एल्कलॉइड इससे सिंथेसाइज हो सकते हैं। देखिए इसका ऑप्शन नीचे है, देखते हैं। ऑप्शन इसका ए है कोल्चिसिन, ऑप्शन बी पेपावरिन, ऑप्शन सी इज इमेटिन एंड ऑप्शन डी इज सिफेलिन। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट फिनाइल इथाइल आइसोक्विनोलिन, आप जानते हैं कि ये क्या है, क्विनोलिन न्यूक्लियस का आइसोक्विनोलिन फॉर्म है। और क्विनोलिन न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो दूसरे पोजीशन पे आइसोक्विनोलिन होगा। तो ये आपका जो है क्या है, क्विनोलिन न्यूक्लियस है 1 2, ये आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस है। आइसोक्विनोलिन फिनाइल इथाइल आइसोक्विनोलिन, तो इसमें क्या है, फिनाइल इथाइल आइसोक्विनोलिन, इसमें फिनाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप जुड़ा होगा। तो ये जो रिंग है वो इसको क्या बोलेंगे, आइसोक्विनोलिन। और आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस कहाँ पे यूज होगी, वो देखिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कोल्चिसिन जो है रिंग है और इसमें फिनाइल इथाइल आइसोक्विनोलिन रिंग यूज होती है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी द कोल्चिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज द फॉलोइंग फैटी एसिड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अनसेचुरेशंस हाईएस्ट टू लोएस्ट। क्या मतलब है कि हमें जो है फैटी एसिड्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अनसेचुरेशन में इसको पुट करना है। मीन्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है फैटी एसिड्स अनसेचुरेशन कह सकते हैं हम, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा अनसेचुरेशन किस में है और सबसे कम अनसेचुरेशन किस में है। अनसेचुरेशन मतलब हो गया डबल बॉन्ड। सो हमें ये देखना है कि कौन सी फैटी एसिड में। आप जानते हैं कि लिपिड्स में क्या होते हैं, फैटी एसिड सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो हमने बहुत से एग्जांपल्स देखे होंगे जिसमें फैटी एसिड है जो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन एक दिया हुआ है, पी है स्टेरिक एसिड, क्यू है ओलिक एसिड, R is linoleic acid and S is linoic acid. So we have to find out which one have the highest double bond, means highest unsaturation, highest double bond. कौन सा कंपाउंड जिसमें हाईएस्ट डबल बॉन्ड और हाईएस्ट अनसेचुरेशन होगा। तो देखिए हम देख रहे हैं कि
स्टेरिक एसिड में तो ये कह सकते हैं कि बहुत कम अनसेचुरेशन है, मतलब एक तरह से सेचुरेटेड कंपाउंड फैटी एसिड्स में आता है। ओलिक एसिड में एक फैटी एसिड डबल बॉन्ड होता है, और लिनोइक एसिड में जो आपके 2 फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड में ज़्यादा है, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा, हाईएस्ट हो गया आपका लिनोलिक एसिड, देन लिनोइक एसिड, देन ओलिक एसिड, एंड देन सबसे कम होगा आपका स्टेरिक एसिड। सो आप देखिए RSQP, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा R में लिनोलिक एसिड, उससे कम होगा लिनोइक एसिड में, फिर ओलिक एसिड में, सबसे कम होगा स्टेरिक एसिड में। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका C, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द मूव द क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. What is the question number 9? Each of the following options list in phytoconstituents its phytochemical grouping, pharmacological activity, and corresponding semi-synthetic analog. Find a mismatching option. तो हमें इसमें क्या देखना है, क्या हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें मिसमैचिंग ऑप्शन देखना है। क्या क्या दिया हुआ है, एक के लिए दिया हुआ है फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं, मिस ड्रग में क्या क्या फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फाइटोकेमिकल ग्रुप्स दिए हुए हैं कौन कौन से केमिकल्स हैं, और उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, और सेमी सिंथेटिक एनालॉग किससे वो सेमी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। इन सब का ग्रुप मैच करना है। ऑप्शन ए हम देखते हैं, पहला पोडोफाइलोटॉक्सिन। पोडोफाइलोटॉक्सिन हम जानते हैं किस कैटेगरी ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है, ये तो ठीक है। कोई पोडोफाइलोटॉक्सिन है और ये पोडोफाइलोटॉक्सिन है और ये क्या है, एंटी कैंसर है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये आपका लिग्नान है, एटिपोसाइड है, तो ये चीज़ है कि ये लिग्नान एटिपोसाइड है, ये भी ठीक है, लेकिन लिग्नान नहीं है, इट्स नॉट लिग्नान्स, क्योंकि ये एल्गोलॉइड्स है, तो ये आपसे ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी सिनासोइड, एंथ्राक्विनोन, लैक्जेटिव एंड सिनेग्रीन। देखिए अब इसमें हम देखते हैं सिनोसोइड, ठीक है। सिनोसोइड किससे मिलता है हमें, सेना एल्कलॉइड से, सेना लीव से मिलता है, सेना, और सेना एल्कलॉइड्स क्या हैं, सेना एल्कलॉइड्स हैं, सेना लीव। एंथ्राक्विनोन टाइप के एल्कलॉइड्स हैं, ये भी ठीक है। दूसरी चीज़ लैक्जेटिव, बिल्कुल ये लैक्जेटिव एक्शन शो करते हैं, और जो है सिनेग्रीन, ये भी सही है कि आपका सिनेग्रीन जो इसमें सिनोसोइड में जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव पार्ट है जो कि इसमें होता है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्टली तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सर्च करना है, मिसमैचिंग से करना है। तो सिनेग्रीन, आप देखिए यहाँ पर सिनेग्रीन क्या है, ये एक सिनेग्रीन, चलिए मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर गया, ये लिग्नान है, ये भी सही है। फाइटोकोसिब का भी एक ऑप्शन एकदम सही है। बी में जो है सिनासोइड है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, ये भी ठीक है। लैक्जेटिव ये ठीक है, लेकिन सिनेग्रीन किस में है, ये सल्फर कंटेनिंग एल्कलॉइड्स होते हैं जो सिनोसोइड्स में नहीं आएंगे, सिनेग्रीन इसमें नहीं आएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, बट मिस मैच हो रहा है कि सिनेग्रीन इसमें सही मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, एट्रोपिन है, एल्कलॉइड है, बिल्कुल सही है। एंटीकोलिनर्जिक है, ये भी सही है। और होमोएट्रोपिन, इसका क्या कह सकते हैं आप, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, जिससे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। सेमी सिंथेटिक सिनेग्रीन से सिनोसोइड नहीं बना सकते हैं, इटिपोसाइड से पोडोफाइलोटॉक्सिन बना सकते हैं, एकदम सही। ऑप्शन बी है आपका जो THC एंड द टेट्रापेनोइक फिनोलिक एसिड एंड आपका साइको एक्टिव एंड नेबिलोन। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही करेक्ट है कि नेबिलोन से जो है जो टिनोपिनोइड ट्रपिनोफिनोल फिनोलिक जो है आपका एक्टिव साइकेटिक ड्रग बनाई जा सकती है। तो सारे ऑप्शन इसमें सारे सही हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं भी इसमें एक बार थोड़ा सा मिसमैचिंग, देखिए हमें मिसमैचिंग शूट करना है, मैं यहाँ गलती कर गया था, प्लीज़ आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या था हमारा, दैट इज ऑप्शन ए पोडोफाइलोटॉक्सिन, जो कि एक लिग्नान है, एंटी कैंसर एक्टिविटी रखता है, और इटिपोसाइड से ही पोडोफाइलोटॉक्सिन जो सिंथेसाइज किया जाता है, सेमी सिंथेसाइज किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरे में सिनोसोइड है, एंथ्राक्विनोन जो है इसमें
क्या होती है, न्यूक्लियस होता है, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स में केमिकल ग्रुप है, और इसमें लैक्जेटिव एक्शन शो करता है। बट ये सिनेग्रीन से सिंथेसाइज नहीं होता। सिनेग्रीन तो क्या है, एक एस सल्फर कंटेनिंग एल्कलॉइड्स हैं जो कि सिनेग्रीन से सिनेसोइड्स में नहीं सिंथेसाइज होता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया कि मिस मैचिंग है, सिनेग्रीन इसमें नहीं मैच करता। ऑप्शन सी देख लेते हैं एक बार दोबारा। एट्रोपिन एल्कलॉइड है, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन रखता है, और हम एट्रोपिन से एट्रोपिन सिंथेसाइज होता है। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। THC जो है, हम जानते हैं THC जो है एक एंटी साइकोएक्टिव ड्रग है, और ये ट्रेपेनोफिनोलिक डेरिवेटिव है, और नेबिलोन से सिंथेसाइज करते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 मिस मैचिंग का, फार्माकोग्नोसिस से फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फार्माकोएक्टिविटी, एक तरीके से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया हुआ है जीपेट ने, वेरी नाइस। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ? विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज नॉट रिलेटेड टू द प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटरी एक्शन? प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटरी एक्शन कौन सी मैकेनिज्म से जो है, हमें क्या पूछ रहा है कि कौन सी मैकेनिज्म से जो है प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन एक्शन नहीं होता है, नॉट, हमें ध्यान रखना है। व्हाट इज द क्वेश्चन? इज नॉट कैसे मैकेनिज्म नॉट रिलेटेड टू द प्लेटलेट एग्रीगेशन एक्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनसे एग्रीगेशन इनहिबिटरी एक्शन। प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए ADP रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंटागोनिस्ट में इसको जो है एग्रीगेट रिसेप्टर इनहिबिट करते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज, ये भी सही है आपका, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बिल्कुल सही है। ग्लाइको रिसेप्टर जो है वो भी प्लेटलेट एग्रीगेशन से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिशन। फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर हम जानते हैं कि ये आपका जो है एक गलत है, क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन से रिलेटेड नहीं है। ये किससे है? ये मसल्स जो है वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। और जैसे हमने देखा कि सिल्डेनाफिल एग्जांपल है इसका, जो कि फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिशंस को क्या कहते हैं, इनहिबिटर है। और सिल्डेनाफिल का साइड एक तरीके से इसको पेनिस इरेक्टाइल ड्रग के लिए यूज करते हैं। तो ये आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन का ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। चौथा देख लेते हैं। डी ऑप्शन इज द प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशंस, एकदम सही है। प्रोस्टाग्लैंडिन का इनहिबिशन करके जो प्लेटलेट एग्रीगेशंस को किया जा सकता है। ऑप्शन जो आपके तीनों ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी, और फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिशन, तीनों मैकेनिज्म हो सकती है प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन की। बट फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिशन जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन की नहीं होगी। ये क्या है आपका, हमने देखा ये सिल्डेनाफिल इससे एक्ट करती है, तो ये इसका नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, क्वेश्चन नंबर 10 का। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज बीइंग इनएक्टिवेटेड बाय द एंजाइम फास्फोडाइल, लेकिन से डाईपेप्टाइल फास्फेटिडिल 4, डाईपेप्टाइल फास्फेटिडाइल पेप्टाइडेज 4, इसको जो है कौन सा ड्रग जो है इनएक्टिवेट करता है, कौन सा एंजाइम? तो देखिए पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। हम जानते हैं ऑक्सीटोसिन का कोई संबंध नहीं है यहाँ। ऑक्सीटोसिन आपका एक हार्मोन है जो कि इससे सिक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन बी जो वेसोप्रेसिन जो है एक एंटी डायरेटिक हार्मोन है, वो भी पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। इसका भी पेप्टाइडेज 4 के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसे प्रोटीन मेटाबोलाइट से मेटाबॉलिज्म करता है। ऑप्शन सी इंक्रेटिन। इंक्रेटिन क्या है? व्हाट इज द इंक्रेटिन? ये एक इसका करेक्ट ऑप्शन है। इंक्रेटिन एक्चुअली क्या होता है, यही जो है वो इसको पेप्टाइडेज 4 को इनहिबिट करता है। इंक्रेटिन जो हमारी इंटेस्टाइन में जो सेल्स हैं उनके थ्रू ये सीक्रेट होता है, और ये क्या करता है, एक तरीके से हार्मोनल एक्शन देता है, और एक तरीके से ये लोकल हार्मोन की जैसे काम करता है। और ये क्या करता है कि वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसको मेटाबोलाइज करता है, उसको डिवाइड करता है, उसको तोड़ता है ग्लूकोज पार्ट में, सॉरी प्रोटीन को जो है वो क्या कहते हैं
पॉलीपेप्टाइड है उसको डाइपेप्टाइड है मोनोपेप्टाइड में तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन को ही तोड़ता है, जिससे कि क्या है प्रोटीन एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन हो सकता है और एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होकर के वो एब्जॉर्ब हो सकता है इन द इंटेस्टाइन में इंक्रीटिन जो है सिक्रीट होता है जो कि डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज को 4 को इनहिबिट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है इंक्रीटिन। एंड ग्लूकेगोन हम जानते हैं ये क्या करता है ग्लूकोज लेवल ब्लड ग्लूकोज लेवल को एनहांस करता है। तो ये जो है हमारा ये भी आप जानते हैं ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा देयर इज ऑप्शन सी इंक्रीटिन। सो क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इट्स क्लियर नाउ। सो नाउ वी लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं दैट इज 2 जेनेरिक टाइप ऑफ कैनाबिस ड्रग टाइप हैम टाइप्स आर कल्टिवेटेड। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि 2 टाइप की जेनेटिक टाइप की जो कैनाबिस है जो कि ड्रग टाइप और हैम टाइप है वो जो है यहाँ पे एक तरीके से कल्टिवेट की गई है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन पी इज द ड्रग टाइप कैनाबिस इज रिच इन A9 रेयर टेट्राहाइड्रोकैनाबिस। हमने पहले देखा था THC, वो THC एक तरीके से कैनाबिस जो THC रिच होता है जो कि इसमें एंटी साइको एक्टिव ड्रग कंपाउंड होता है जो हमने देखा। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्यू ऑप्शन है दैट इज हैम टाइप कैनाबिस इज रिच इन कैनाबिडायोल्स। तो हैम टाइप जो कैनाबिस है वो भी कैनाबिडायोल से रिच है। तीसरा क्वेश्चन आर है हमारा ड्रग टाइप कैनाबिस इज रिच इन द कैनाबिडायोल। एस है हमारा हैम टाइप कैनाबिस कंटेन्स elongated blast fibers and which one is the correct statement for this। तो इसमें पहला ऑप्शन ऐसे है कि Q is true, P is true, Q is true, R is true, S true means all are true। B is P true, Q false, R false and S true, and C is Q true, P true and R true, S is R false and S is true, and D is P true, P false, S Q false, R and S R true and S false। तो हमें देखना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए पहला कह रहा है कि कैनाबिस जो है वो किससे रिच है, THC से रिच है, ना ही THC से रिच है ड्रग टाइप। दूसरा जो ये क्वेश्चन ये जो है गलत है, ड्रग कैनाबिस जो है THC जो है ट्रेर से ड्रग रिच नहीं होता है। दूसरा जो हैम टाइप कैनाबिस है वो कैनाबिडायोन से है, ये बिल्कुल ड्रग गलत है। हाँ आर है हमारा कि क्या है ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आर है हमारा कि ड्रग जो कैनाबिस है वो रिच है किससे, कैनाबिडायोल से, ये एकदम सही है। जो ड्रग फॉर्म है कैनाबिस का वो इससे रिच है। हैम टाइप कैनाबिस कंटेन इलोकेटेड फाइबर्स, ये भी गलत है। तो एक ही गलत है हमारा आर। तो हम देख लेते हैं एक बार, ये किसमें दिया हुआ है कि आर सही है बाकी सारे गलत हैं। देखिए आर सही है, पी नहीं, आर सही है। देखिए ये है ऑप्शन नंबर डी जिसमें आर सही है बाकी सारे गलत हैं, एस भी गलत, फॉल्स भी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा पी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा कि हमारा आर में से एक ही चीज़ है कि ड्रग जो कैनाबिस टाइप का जो ड्रग है उसमें जो है कैनाबिडायोल्स होता है, बाकी में किसी में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं द इनहिबिशंस एंड इंडक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोक्रोम P450 enzyme system is most likely to be involved in important drug interactions। हमें क्या देखना है कि ड्रग जो इनहिबिशन इंडक्शन है वो भी जो कौन सी जो साइटोक्रोम 450 एंजाइम्स को इनहिबिट करे सबसे ज़्यादा, वो कौन से टाइप का जो है जो क्या कहते हैं इंट्रैक्शन है, कौन से टाइप का ड्रग इंट्रैक्शन है, कौन सा ड्रग इनहिबिशन है। पहला है जो सबसे ज़्यादा हम देखिए पहली चीज़ है कि साइटोक्रोम P450 इन्वॉल्व कहाँ होता है, साइटोक्रोम P450 कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी चेन रिएक्शन में वहाँ पे। तो ये एक्चुअली कौन सी जो इनहिबिशन, कोई भी ड्रग अगर साइटोक्रोम 450 एंजाइम को इनहिबिट करती है तो किस टाइप का ड्रग इंट्रैक्शन शो करती है या किस टाइप के जो क्या कहते हैं एक रेस्पिरेटरी चेन को जो है इनहिबिट करती है, वो हमें देखना होगा। यहाँ पे आंसर वही है पूछ रहा है। पहला है साइटोक्रोम 4A तो मोस्ट अबोर्डिनेट होना चाहिए। दूसरा है साइटोक्रोम 2D6, तीसरा है C साइटोक्रोम 2C9 और D साइटोक्रोम 1A2।
तो देखिए साइटोक्रोम ए वाला ग्रुप होता है जो सबसे ज़्यादा एबोनेंट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है 3A और 1A2। 1A2 तो एक्चुअली कोई एक तरीके से साइटोक्रोम ही नहीं है एक्चुअली, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है 3A4। साइटोक्रोम 3A4 जो है वो करेक्ट एक तरीके से सबसे ज़्यादा एबोनेंट साइटोक्रोम 450 होता है, जिससे कोई ड्रग जो है वो इसको इनिबिट करती है या एक्टिवेट करती है। ड्रग इंट्रक्शन जो कहता है मेटाबॉलिक एनहांसर और मेटाबॉलिक डिप्रेशर जो होती है ड्रग, वो इस साइटोक्रोम 3A4 को ही इनिबिट करती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जीपेट का, तो ये हमने डिस्कस किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 इज द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन 4 डिजीजेज। मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 4 डिजीजेज इज फर्स्ट द क्वेश्चन, द P इज द cardiomyopathy, Q is rheumatoid arthritis, and QR is myasthenia gravis, and S is the ulcerative colitis। तो ये 4 ड्रग्स दी हुई हैं। पहला आपको कार्डियोमायोपैथी है, R है आपका, Q है इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, देन ये है माइस्थेनिया ग्रेविस, एंड S है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स किसके कारण होता है। देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम जानते हैं कार्डियोमायोपैथी, ये आपका जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ये कार्डियक इन्फ्लामेशन है मायोपैथी, जैसे कार्डियक में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है। दूसरा चीज़ है कि रूमेटिक आर्थराइटिस, यस ये जो है आपका क्या है, एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है, जो कि खुद की इम्यूनिटी जो है उसको एनहांस करे, और जब एज हो जाता है तो ज़्यादा एज होने पे जो घुटनों में दर्द होने लग जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो किसी कारण होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण। तो ये तो एकदम सही है, करेक्ट है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ये आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ये एंटीबायोटिक के कारण जो है डिसऑर्डर्स होता है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस आपका जो है ये आपका है कि ये क्या है, ऑटोइम्यून डिजनरेशन है। ठीक है, तो इसका जो क्या कह सकते हैं करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं। तो ये इसका है। ये आई थिंक ये भी मिस्टेक है यहाँ क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं होती, माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है। तो इसमें Q और R इसका सही आंसर होना चाहिए, बट Q और R ऑप्शन में नहीं है, हैज़ टू बी द R। इसका मुझे डाउट है, इसको लेट अस सी, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूछा गया उसको डाउटफुल क्वेश्चन है, R इसका आंसर होना चाहिए। माइस्थेनिया ग्रेविस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों जो है इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होनी चाहिए, क्योंकि मायोपैथी अल्सरेटिव कोलाइटिस ये दोनों जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर इसमें कुछ मिस्टेक है, सो लेट अस इट्स लीव नाउ। इसको हम छोड़ते हैं, लेट अस डिस्कस, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो आफ्टर द कन्फर्मेशंस। पूरा इसको क्या देख करके मैं चेक करके बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 14-15, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बाकी हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का 15 क्वेश्चन है, द मोस्ट ऑफ द इमरजेंसी contraceptives में has the following which have one of the following active ingredients। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन सा है इसमें, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में एक्टिव इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले मीन्स जितने भी हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं या इमरजेंसी पिल्स होते हैं, इंटरवेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, उनमें क्या होना जरूरी है, कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट होना जरूरी है। पहला ऑप्शन है एस्ट्राडायोल, दूसरा है नोरइथिनड्रोन, तीसरा है मिसोप्रोस्टोल, एंड चौथा है नोरजेस्टेरोन, लिवोनोरजेस्टेरोन। देखिए एस्ट्राडायोल हम जानते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, बट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ये पूछ रहा है। तो एस्ट्राडायोल में अगर वैसे कॉन्ट्रासेप्टिव होता है तो एस्ट्राडायोल भी होता है, आपका नोरइथिनड्रोन भी होता है। मिथिस्ट्रोन हम जानते हैं जो आपका क्या होता है, एक इमरजेंसी पिल्स में होता है, लेकिन ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, PG इनहिबिटर्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मिसोप्रोस्टोल, जो कि सभी में एक्चुअली होता है। बट सभी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कौन सा क्या कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट होना ज़रूरी है, तो वो हमारा है
दैट इज़ लियोनोर्जेस्टेल, जो कि सभी के साथ कॉम्बिनेशंस में होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन मिसोप्रोस्टोल भी इसमें हो सकता था, बट ये है कि लियोनोर्जेस्टेल सभी में, सभी एक्टिव में जो है क्या होना चाहिए, लियोनोर्जेस्टेल सब में प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सो आई थिंक आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चंस मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप लोगों को फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज़ मुझे आस्क कर सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, एंड जो भी है मुझे आप रिप्लाई कर सकते हैं। सो रेस्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 से हम आगे का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कि आज का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं ये क्वेश्चन नंबर 14 एक बार दोबारा चेक करूँगा और आई विल इन्फॉर्म यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।